سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کس رخ جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم قابو کر پائیں گے جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں؟ دیکھنا کہ دورہ سعودی عرب جو ہے وہ آج کل تو ہر طرف اس کے چرچا ہے خان صاحب کے دورہ سعودی عرب کا, اور سوشل میڈیا بھی کافی بحث چل رہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ویسے ہی میرا خیال ہے کہ شاید دورہ ان کا اچھا رہا, کامیاب رہا, اور دیکھنا کہ یہ دورہ جو تھا لیکن ان کے ایک وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ سعودی عرب سے ان کے تعلقات ہمارے کافی کشیدہ ہو چکے ہیں, اور جس کی وجہ بھی جو ہے تعلقات خراب کرنے کی وجہ جو ہے وہ بھی حکومت ہے ہماری. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شاید وہ کیسی صاحب نے ایک ہلکی سی دھمکی بھی دی تھی کہ کشمیر کے مسئلے میں اگر سعودی عرب نے ہمارے ساتھ نہ دیا تو ہم کوئی اور راہ دیکھیں گے. پھر اس کے علاوہ خان صاحب جب تھے, خان صاحب نے ایک ہی چاہ رہے تھے کہ بار بار جو بلاک بن جائے سعودی عرب سے ہٹ کے کا تو ترکی کا ساتھ ایران تھا, 2 ملک اور تھے. اس کے علاوہ مطلب اس نے ان کو ناکامی, کیونکہ جب سعودی عرب کو پتہ لگا تو سعودی عرب نے جو صاف غصہ دکھا دیا کہ آپ اس معاملے سے ہٹ جائیں. تو دوسرا پھر انہوں نے خان صاحب نے بھی یہ ذکر طیب الردگان صاحب سے کر دیجیے کہ سعودی عرب جو ہم سے ناراض ہے. تو طیب الردگان صاحب نے جو وہ ٹی وی انٹرویو میں پوری دنیا کے سامنے کہہ دی تھی پاکستان کی جو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان پہ زور ڈال رہا ہے. اور دیکھیں ان کے مطلب جانے سے معاملات خاصے بہتر ہوئے. اور جیسے بات کی آرمی چیف باجوہ صاحب نے, تو باجوہ صاحب جو ہے ان سے مطلب پہلے پہنچے ہیں, انہوں نے پہلے جا کے ان سے بات کی, ماحول سازگار بنایا ہے. میرا تو خیال ہے آرمی چیف اس میں بہت محنت ہے. ہاں جی, آرمی چیف صاحب جو ہیں ان سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. اب دیکھیں نا اپنی دورہ جو ہے سے تو ان کے معاملات جو بگڑے تھے, ایک تو وہ جس میں پاکستانی لیبر کا مسئلہ تھا, وہ لیبر ان کے جو تعمیرات جو ہو رہی ہے اس میں ہوا ہے جو ان کو پاکستانی لیبر آئے گی, مطلب پاکستانی جو ہے وہ سارا کچھ ان کا اور جو قیدی بند ہے ان کا بھی تبادلہ ہوگا, ان کا تبادلہ ان کی بھی رہائی ہو رہی ہے. اب دیکھیں مطلب یہ مطلب بہت اچھا ہے, انشاءاللہ اس کے آئندہ جو ہے وہ خاصے بہتر نتائج سامنے آئے. بلکہ اس سے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کو بھی عقل آئے گی کہ اگر پاکستان کی اہمیت کے متعلق جو ہاں جی, مطلب جیسا شاید سعودی عرب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی اہمیت, کیونکہ اس وقت جو دنیا کا نقشہ جو بدل رہا ہے, کیونکہ ٹرمپ جو ہے ٹرمپ صاحب بھی چھوڑ چکے ہیں, جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ, لیکن وہ بہتر ہے. اور شاید سعودی عرب کو پتہ لگ گیا پاکستان کے جو اس کے لیے بہت بہتر ہے, جو خلوص اور محبت پاکستان رکھتا ہے وہ سعودی عرب کے لیے کوئی نہیں رکھتا. ہاں جی, ان کو سعودی عرب کا احساس ہو گیا ہوگا نا پاکستان کے ساتھ جو پیار اور محبت جو ان کو ملتا ہے, اس لیے وہ. لیکن بہرحال اچھا دورہ ہے. شامی صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے پاکستانی سیاست بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, یہ جو مہنگائی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اس پہ کیسے حکومت کیا قابو پا لے گی یا نہیں پا سکے گی؟ سر مہنگائی دیکھیں نا, یہ سراسر حکومت کی ناکامی نااہلی, کیونکہ جب سے حکومت آئی تب سے عوام سوچ رہی تھی کہ ریلیف ملے گا, سہولت ملے گی عوام کو, مطلب لیکن مہنگائی جو ہے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, دن بہ دن بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ یہ اب دیکھیں ایون یہ یوٹیلیٹی اسٹور جو صرف اس میں چیزیں سستی تھیں لیکن انہوں نے اب وہ بھی خاصی جو ہے وہ مہنگی کر دی ہیں. اس کے علاوہ عام عوام کو کون سا دور ہوگی. پھر انہیں رمضان جا بھی نہیں سکتے, سارے لوگ تو نہیں. ہاں جی, عام طبقہ جاتا ہے لیکن عام طبقے کی پہنچ سے بہت مطلب باہر چلی گئی چیزیں, کیونکہ اوپر والے طبقے تو فرق نہیں ہے ہمارے جیسے. اور رمضان بازار انہوں نے 27 تاریخ کو ویسے ہی بند کر دیے سارے. ہاں جی, کرونا کی وجہ سے دیکھیں تو کرونا آ گیا, کرونا کی وجہ سے سارے بازار وغیرہ ویسے ہی بند کر دیا. عید کی شاپنگ جنہوں نے کرنی تھی عید کی وجہ سے سارے وہ بہت سے جو لوگ ایسے ہیں وہ رہ گئے ہیں, اور دوسرے گھروں کو اپنے ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی, بازار بھی بند کر دیا. مہنگائی ایک طرف پہلے ڈسے ہوا, اور اوپر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی چل گیا, اس سے بھی عوام پریشان ہے. اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھنا اصل میں انہوں نے ایک میٹنگ بنائی تھی, وہ کوئی کام نہیں کر رہی. پھر دوسرا حکومت کا جو اصل میں تو ان کے ذخیرہ اندوزوں کو پکڑیں, جو آپ بلیک میں مارکیٹنگ کرتے ہیں, ہر چیز منگواتے ہیں, ان کو انتظار کرتے ہیں چیزیں ذخیرہ کر کے کہ مارکیٹ سے چیز غائب ہو, مہنگی ہو, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے یار انہوں نے شوگر معافی. حکومت میں اتنی طاقت ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کو قابو کر لیں, گرفت میں لے آئیں. سر اگر ہوتی تو اب تک یہ مسئلہ سارا ختم ہو سکتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اور حکومت نے جو کمیٹی بھی بنائی ہے اس کا بھی کوئی کام ہے, وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی. پہلے تو استعمال کمیٹی بنی ہے, بازار میں ایسے استعمال کیا تھا, یہ کیا تھا, بازار جو بنائے ہیں مہنگائی کے, آپ روتے ہیں. آپ اب منسٹر صاحبہ جو بھی آپ 2 دن ایک واقعہ ہوگا جی, اے سی صاحبہ کو انہوں نے ڈانٹ پڑائی کو گورنمنٹ صاحبہ نے, اب وہ جا کے کوئی بازار اے سی میں جی ان کے یہ وہ مہنگائی تھی یا جو بھی تھا, اور وہ بڑی وہ بھی خاصی مشہور ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, جی ہاں, ویڈیو وائرل ہوئی. لیکن یہ مہنگائی کنٹرول کرنا حکومت کا کام. حکومت جو ہے جن کو اپنا ہی پتہ, کیونکہ ان کو اکثر لوگ یہ جو آپ نے بات کی کہ آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی, اپوزیشن حکومت کے خلاف ڈنڈا لے کے چڑھ رہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے, اپوزیشن کچھ کر رہی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب کو جو ایک ان کا آرڈر مل گیا
मैं उस पे भी सेकंड हाफ में गुफ्तगू करूंगा, मैं उस पर पूरी गुफ्तगू करूंगा। महंगाई के साथ हुकूमत का काम कंट्रोल करे। मैं मियाँ साहब की तरफ आता हूँ। मियाँ साहब क्या देखते हैं, कैसे नज़र आ रहा है कि आपको हुकूमत ने, जिस तरह अभी शामी साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत ने क्या पॉलिसी बनाई हेल्थ के ऊपर, क्या हेल्थ पॉलिसी, क्या एग्रीकल्चर पॉलिसी, क्या फाइनेंस पॉलिसी, हुकूमत की क्या एजुकेशन पॉलिसी, क्या हेल्थ पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है, या पुलिस रिफॉर्म्स, क्या चीज़ बनाई है, किस पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? जी मियाँ साहब। लेकिन ये बात तो आपकी वजह है कि जो पॉलिसी मुल्क के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन ये पॉलिसी के ऊपर ही मुल्क चलता है। अगर आप ट्रेड पॉलिसी होएगी, तजारत आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी खारजा पॉलिसी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी होएगी, तो वो आपकी खारजा, और उससे आपको पहले भी हमने ईयर्स किया है कि उससे आपकी तजारत भी बदल पड़ सकेगी। इसी तरह आपकी एजुकेशन पॉलिसी है वो होगी, इसी तरह आपकी हेल्थ पॉलिसी, लेकिन वो पॉलिसी है कहाँ मियाँ साहब? मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ। वो पॉलिसी वही आपकी बात, वो है नहीं है। इसी तरह ज़राअत एक अहम तरीन मुल्क जिसकी इकॉनमी बेस ही कर रही है, आपकी मईशत ही सारी ज़राअत पे बेस करती है 60%। तो वो उसकी पॉलिसी नहीं है। उसके ऊपर तो हमने आपके बेशुमार प्रोग्राम में आपने, आपको याद ही है कि आपने बेशुमार प्रोग्राम, अनगिनत प्रोग्राम आपने किए हैं इसके ऊपर के द्वारा ये एग्रीकल्चर पॉलिसी आप बनाएं, और इससे आपको उसके बड़े समरात मिलेंगे, आपकी हुकूमत बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन कोई अभी तक उसकी कोई कंप्लीट टाइम पे काम नहीं हुआ, और एक डंक पाउच सी एक चीज़ आती है हमारी कि जी ये फीड की प्राइसेस ऐसी कर दी जाए, ये आज राइस की प्राइसेस ऐसी कर दी जाए, आज ये आपकी मार्केट पूरी दुनिया में जाएगी, या खाली पाकिस्तान नहीं होगा। और बेशुमार साइड का आपकी कहीं ऑनलाइन कारोबार ही सारा ऑनलाइन हो रहा है। आपको गाड़ी चाहिए रेंट की, आप ऑनलाइन करें, आपको खाना चाहिए आप ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर कर दें। तो इसलिए कि मतलब क्योंकि अब आने वाला दौर ही ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आने वाला दौर ही सारा ऑनलाइन है। वो तो कहते हैं कि घर बैठ के भी आप कारोबार अब ऑनलाइन जितना देखना, आप स्टार चल रहे हैं कि आप लड़कों को कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन, बेशक आप घर में बैठे, लेकिन आप ऑनलाइन उनको इतना पैकेज दिए तो घर बैठ के आप कमा सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन। हर चीज़ और दौर एडवांस हो रहा है, तब दुनिया तरक्की कर रही है, और हम लोग वहीं की नहीं बैठे हैं। वक्त के साथ साथ चलना चाहिए, और इससे आप बिल्कुल कौम की सही रहनुमाई फरमा रहे हैं कि वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। ऑनलाइन का दौर है तो कौम को उसके मुताबिक चलना चाहिए। कैसे देखते हैं शहबाज शरीफ साहब को, जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि वो बैरून मुल्क जा सकते हैं इलाज करवाने के लिए, फिर दोबारा उनको रोका गया, कैसे देखते हैं इस मामले को सारा? सर देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो साबिक वज़ीर पंजाब में रह चुके हैं, अवाम के हर दिल अजीज़ भी, और तमाम सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के मनपसंद भी। और अगर देखा जाए तो जो एक अफवाह सी गर्दिश में है कि मुस्तक़बिल के वज़ीर-ए-आज़म भी अब जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, और क्योंकि इसलिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो तीन वज़ीर बन गए, अब वाज़ेह अदालती अहकाम आते हैं कि जी कि उनको बाहर जाने दिया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जहाज में बैठने नहीं दिया। जो इसलिए नहीं बैठने दिया क्योंकि उनका अपील के हमने बहाना बनाया जी कि उनको ब्लैक लिस्ट है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अदालती अहकाम अगर पढ़ें आप देखेंगे उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अगर वो अदालती मतलब ब्लैक लिस्ट की है, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में भी है, तो वो मखसूस मुद्दत तक वो एक दफ़ा इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से पहले कतर जाना था, 10 दिन उन्होंने अपना कंटीना करके उसके बाद फिर उन्होंने लंदन जाना था। और हुकूमत को देखें शायद ये डर पैदा हो, खौफ पैदा हो गया कि एक भाई तो पहले ही बाहर बैठे हैं, अभी दूसरे भाई को चले गए तो जाने पता नहीं मिल दोनों भाई बैठ गए, और बैठ के पता नहीं क्या फिक्रियाँ बताएंगे घूमों के लाओ। और लेकिन ये देखें ना कि जाती हैं, उनको जाने देना चाहिए। और क्योंकि उसने शहबाज शरीफ साहब को अगर अब बाहर जाने से रोका उन्होंने, तो ये देखें ना कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आता है। इस पर हुकूमत के उनकी तौहीन अदालत भी लग सकती है जिन्होंने अदालती अहकाम की सरेआम तरीक़ियाँ पर कई खिलाफ वर्जी की। और दूसरा देखें कि एक तो दूसरी तो अब हुकूमत ने फिर वो बाद में दरिया पेपर मिल का मामला दोबारा से वो शुरू कर दिया। हालांकि एक चीज़ फैसला आ चुका है, ख़त्म हो चुकी है। अब हुकूमत पता नहीं गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या साबित करना चाहती है, क्या करना क्यों करना चाहती है। लेकिन उनको जब अदालत के अहकाम है, वाज़ेह अहकाम आता है, तो उनको तो जाने दें, क्यों रोक रहे हैं उनको? इससे तो मसाइल हुकूमत भी ज़्यादा पैदा होंगे। क्योंकि इससे तो आपको लगता नहीं है कि ज़ातियात पे मामला आ रहा है? हाँ जी, देखें ना ज़ातियात भी आ रहा है, क्योंकि देखें ना बात में ये कि हुकूमत ये सोच रही है कि आगे मुस्तक़बिल जो है वो समझने के शहबाज शरीफ था, क्योंकि इमरान खान साहब का मुतबादिल नज़र आ रहा है तो वो शहबाज शरीफ, क्योंकि तब्दीली सरकार से तो आम तब्दीली से मायूस हो गए हैं, इसलिए अब वो बड़ा एक दफ़ा फिर नई तब्दीली के चांद नजर आते हैं। और नई तब्दीली क्या होगी, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सूरत में नज़र आ रही है। इसलिए हुकूमत कहती है कि
इनको अब दबाओ, इनको उलझाए रखो, इनको मसले मसाइल में करो, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। इसलिए वो फिर वो ताकि वो उठ ना सके और इसी मसले मसाइल में लगे। बिल्कुल ठीक। मियां वही साहब कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब अमेज़ॉन जैसी कंपनी को पाकिस्तान ले आए, सऊदी अरब तशरीफ लेके गए तो बड़ा VIP प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब के अंदर। भारत जो पाकिस्तान को कहता था तनहा कर दूंगा, दिन ब दिन तुम तनहा, कैसे देखते हैं आप वज़ीर आज़म की कारकर्दगी अपनी प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी तो है, वो काम कर रहे हैं, उनका ऑफिस बड़ा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं माजर के साथ सर ये कहूँगा कि देखिए ना, आप क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को पसंद करते हैं, आपने उनके साथ काम किया हुआ है, तो आपको ज़ाहिर है उनकी लाइकिंग भी एक होती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जाने ना देना, ज़ाती अना बना लेना, इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये नहीं होना चाहिए। मेरे पेशे में जिस तरह से शामिल साहब ने फरमाया है मेरी, ये अदालती फैसला है, इसकी पासदारी करनी चाहिए और अगर कोर्ट ने उनको भेजा है तो चला जाना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे रोक के आपके यहाँ मिसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और अगर ये आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन नहीं की? लेकिन बात मैं नहीं ये कह रहा कि करप्शन की है या नहीं की, बात ये हो रही है कि कोर्ट ने फैसला क्या दिया है उसके पेश नज़र मैं ये सर उनका कहना ये है कि आपके ऊपर मुख्तलिफ केसेस और भी हैं, और केसेस का भी उसके तहत आपको जाने नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं बात ये था कि कोर्ट ने क्या दिया, मैं तो कोर्ट की बात जी, कर रहा हूँ। कोर्ट ने अगर तो कोर्ट एक ने केस क्या में दिया सर है, उनको कहा है ना, अगर बाकी बाकी केसेस में तो नहीं केसेस कहा। में, अगर कोर्ट ने बाकी केसेस में भी नहीं कहा है तो फिर तो ठीक है। अगर कोर्ट ने बाकी केसेस में भी कह दिया और इनको जाने दिया जाए तो फिर इनको जाने देना चाहिए। अब फिर ये जाहिर बात है, जिस तरह से जामिन साहब ने फरमाया है कि फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगी बात। अगर ये मामला को जिस तरह आप फरमाते हैं ना कि आपके भी जहन में है कि इन्होंने करप्शन की है और इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चले मतलब वो चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन कम अज़ कम हर चीज़ को एक तरीके और कराइने से चलना चाहिए कि अगर उनके ऊपर बाकी चीज़ों पे केसेस चल रहे हैं तो उनको फेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन उनको फेस भी करना चाहिए और ये जिसके पर भी केसेस होते हैं उसको फेस करना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, और इवन इमरान खान साहब के पर भी जो केसेस थे उन्होंने फेस किए। और इसी तरह और भी अपोजिशन के जो लोग हैं या पीपल्स पार्टी है वो भी उसको फेस कर रही है। दीगर जमातें भी है उसको, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो और भी जमातें जो अपोजिशन की है वो सारी की सारी फेस कर रही है। कहाँ फेस कर रही है? शकील निकाल रही है, रहमान बाहर निकल आए हैं, डॉक्टर आसिफ बाहर निकल आए हैं, सारे आपने नाम निकल अंदर आए रहे हैं, अंदर जेलों में रहे हैं। मैं ये नहीं कह, वो जेलों में रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने तो धोखा दिया सारी ऑपोजिशन को। और ये लेकिन उन्होंने वो आज भी कोर्टों में जरदारी साहब भी जा रहे हैं और उनकी वो शीरा साहबा भी, सर अब तो कोई हमने नहीं देखा उनको कोर्ट में जाते हुए, वो कोर्ट तो में रूबा जाए। सेफ है शायद उनके। आपको शायद आपको ये उठा के देखे और शामी साहब भी इस चीज़ पे गवाही देंगे कि वो भी कोर्टों में जा रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं जा रहे हैं, जहाँ उनकी तारीफ होती है वो भी वो पेश है। लेकिन ये बात मैं कोई किसी एक जमात की बात नहीं करना चाह रहा, मैं सारी दीगर जमातों की भी, अगर कोई जिसके ऊपर केसेज है उन सबको फेस करना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे शामी साहब, मियां साहब फेस तो कर रहे हैं अदालतों को, हर वक्त जा रहे हैं, उनका बेटा हमजा शहबाज जा रहा है, तो फिर गिला करेगा शामी साहब? जिला तो यही है ना कि देखिए उनको मतलब अपोजिशन लीडर है, उनका हक भी है, उनको दबाया जा रहा है। ये सिर्फ ये देखें ना, सिर्फ जैसे बात मतलब इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इंतकामी जब से हुकूमत बनी है पकड़ दकड़ के गिरफ्तारी हालांकि करके इसको एक पकड़ लो। जमाने में खान साहब फरमाया करते थे MKM दहशतगर्द जमात है, और आप खुद हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। आपके सामने शेख रशीद के मतलब क्या फरमाया करते थे आपके और सामने? चाचा बिलावल और चाचा को देखिएगा, आपको पता है कि जी। उनका आगे पीछे लगा रहता था जी, सारा तो अब वो शेख। उनके ऊपर तो कोई केस नहीं, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी सारे मुजरिम सर, ठहरे। मोस्टली ये ना कि ये डर है, क्योंकि इस वक्त देखें नून लीग जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल तरीन जमात है, बेशक इलेक्शन की हार गई, कल को फिर तैयारी हो रही, लेकिन नवाज शरीफ की मकबूलियत जो है, नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत वो अपनी जगह पे कायम है। और उनको ये डर है कि कल को कोई मसला खुदा ना खाता हो जाए तो ये ऊपर वापस बैकअप ना हो जाए उनको, फिर ये रातों रात, क्योंकि तो दिल्ली तो पता रातों रात जैसी आई है वैसे दोबारा भी आ सकती हैं। अब ये खुद अपने पाँव को खिलाड़ी मारे, बहुत से फैसले उन्होंने भी गलत किए हैं, बहुत से अब हो रहे हैं, मामला भी चल रहे हैं, लेकिन ये इंतकामी कार्रवाई छोड़ दें। और नून लीग का जो है, नून लीग का सिर्फ वो अपना ज़ाहिर है, इसमें मतलब उनका इस्तेहकाक है, ठीक है, जमहूरियत है, जमहूरी दौर है, हर एक शख्स को इधारे राय की आज़ादी है, हर मतलब बोल सकता है। बिल्कुल। तो अब वो जाना चाहते हैं, उनको फिर दूसरा इलाज के लिए जा रहे हैं, वो मतलब जैसे वो पहले मियाँ साहब गए, नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए, तो अभी इलाज के लिए जाना चाह रहे हैं। लेकिन इनके मुताबिक जो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मखसूस मुद्दत में मखसूस टाइम पे आप एक दफ़ा बाहर इलाज के लिए जा सकते हैं,
और फिर वापस भी उन्होंने, क्योंकि कोर्ट ने इनको पूरा नहीं दिया, उनको सिर्फ एक मसूद टाइम पीरियड दिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर से आप जाकर अपना इलाज करा के वापस आएँ। लेकिन हुकूमत को डर पैदा हो गया। अब नून लीग को भी ये है कि सिर्फ उनकी तहरीक अब ये चाहते हैं हो सके कि वो उधर जाकर उनको मीटिंग वगैरह करनी हो, इसलिए वो जाना चाह रहे हो, क्योंकि अब उनके पास नवाज शरीफ साहब को मतलब चौथी दफा वज़ीर नहीं बनेंगे, इसलिए अब शहबाज शरीफ साहब ने उनको बताया कि तीसरी अब वज़ीर नए ये तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान के, इसलिए वो चाहते हैं जैसे पहले बात की थी उनको सिर्फ एक दबा रहे हैं। और नून लीग जो है वो फेस कर रही है। पहले तो PDM थी, PDM का तो बेड़ा गर्क जैसे बात हुई पीपल पार्टी साहब ने और लाई साहब ने जो उनका बेड़ा गर्क किया पूरी दुनिया ने देखा है। तो अब 12 उनका हक है, अब नहीं, मियां साहब कहते हैं, मियां साहब फरमाते हैं कि उन्होंने बड़ा गर्क नहीं किया, ये जमहूरियत में होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, क्योंकि PDM तो ख़त्म हो गई। अब वो सारा जो शौर था, हुकूमत प्रेशर था PDM का, वो सारे धरती चल रहे थे, एक मामला सारा चल रहा था, वो तो बिल्कुल ही सिरे से फारिग होकर रह गया। अब इनको ये है अब हर पार्टी जो अपने अपने मुफादात की सियासत कर रही है। नून लीग के अपने मुफादात हैं, पीपल पार्टी के अपने मुफादात हैं, हुकूमती जमात के अपने मुफादात हैं। तो इसलिए जहाँ जब तक मुफादात इनके ख़त्म नहीं होंगे सियासत मुल्क के लिए नहीं सोच सकते, कोई बेहतरी नहीं हो सकती। अब हुकूमत जो है नून लीग जो है वो शोर मचा के थक जाएगी।